Okay, guys, so today we are doing Lead Code daily problem and GFG daily problem. Let's do this. So the problem name is daily temperature, and basically इसमें you have been given an array of temperature of the days, and for every index you have to tell what is the basically minimum number of days that you have to wait, number of days you have to wait for the get a warmer temperature, like a temperature which is greater than this. For example, if this is the array, right? For 73 you don't have to wait anything, like you have to just wait for one day. 74 is greater than this. For 75 you have to wait, 75 is greater than this. For 75, 76 is greater, so between this there are you have to wait for 4 days. ठीक And for 71 you have to just wait for 2 days because 69 and 72 is greater. 69 के लिए you just have to wait one day, 72 के लिए one day, and 76 के लिए you cannot wait because there is no temperature which is greater than 76, so you have to do answer equal to 0. They are saying if it's not possible, keep answer equal to 0, and 73 के लिए भी 0 because there is nothing after this. So that's all about it. करेंगे कैसे? सिंपल है, स्टैक अप्रोच लगाएंगे एंड NGE नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट, राइट? स्टैक ऑफ हम बना लेंगे एक इंटीजर्स का स्टैक नेम्ड एस, एंड हम बना लेंगे एक वेक्टर इधर ही बना लेते हैं जो हमें आंसर में रिटर्न कराना है. लेट्स नेम दिस वेक्टर वी, इनिशियलाइज करेंगे हम 0 से, एंड लेट्स आल्सो क्रिएट दिस n. व्हाट इज दिस n इज इक्वल टू a डॉट साइज. हम नाम चेंज कर देंगे अपने एरे का a डॉट साइज, एंड देन इसका नाम हो जाएगा a, एंड देन हम लगाएंगे फॉर लूप और int I is equal to 0 से लेके I is less than n. Not exactly, but हम पीछे से स्टार्ट करेंगे जैसे कि like how we do in stack and G approach, and I minus minus if your stack is not empty, right? You can also write stack dot size and a of s dot top, not if but while, like there may be more than one element which you need to pop, right? S dot top is अगर छोटा है तुम्हारे a of I से तो पॉप करते जाओ. S dot pop इक्वल भी होगा तो भी पॉप कर देंगे बिकॉज वी जस्ट वांट ग्रेटर, राइट? एंड नाउ वी कैन से इफ v ऑफ I इज इक्वल टू, चेक कर लो, s डॉट empty अगर हो चुका है तो भाई 0 आ जाएगा. अगर नहीं हुआ है तो s डॉट टॉप की वैल्यू कुछ ना कुछ पड़ी होगी, माइनस में I का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, एंड s में हमें पुश तो हर बार करना ही है I, एंड देन वी कैन जस्ट रिटर्न आवर vector. That's about it. Let's give a quick run. A quick run should be good. Yeah, it's good. Let's try to sum this up. Let me just explain you what it is. So yeah, at least it's working. Why, I don't know why the time complexity is so, but yeah, that's about lead code. How calculated, I don't know. So first of all, you will start from the ending. So 73 देखिएगा. सबसे पहले you will start from ending while your stack dot size is 0 because stack is currently empty. So 70 बोलेगा stack empty है तो v of I is equal to stack empty 0. 0 प्रिंट करा देगा इसके नीचे. So इसके corresponding आंसर आ जाएगा हमारा 0 because stack is empty at this point. देन हम जाएंगे अपने 76 के पास और स्टैक में आप पुश कर देंगे बीच में 73. लेट्स से कि ये स्टैक एम्प्टी से अब ये स्टैक हो गया 73. इसमें मैंने 73 नहीं बट n-1, n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? 7. आई होप इट्स 7 एलिमेंट्स ना. 4 + 4 आई थिंक 8 एलिमेंट्स आर देयर. 1 2 3. हाँ, so n-1 is 7. Like indexing wise it is 7 because you can say it is 0 indexing, this is 1 indexing, and so on. Basically this is 7th indexing, right? एंड देन इसके बाद जब हम जाएंगे 76 पे, इसको पढ़ा मिलेगा कि भाई इसके अंदर 7 पड़ा हुआ है विच इज इंडेक्स, तो ये चेक करेगा कि क्या 76 is greater than that, like 73. Yes it is. So let's don't keep index over here, let's keep the value so that it might be more relevant because we need value, but we are storing index to keep the track of the distance, क्योंकि value से हम पता नहीं चल पाएगा भाई 76 है, ओके ये बड़ा है, बट दोनों से डिफरेंस कितना है 75 और 76 के बीच में, डिस्टेंस का जो डिफरेंस है दैट इज 4. दैट वी कैन सी कि भाई 75 का इंडेक्स है मान लो 2, इसका इंडेक्स है क्या बोलते हैं जो भी होगा 5 है या फिर 6 है जो भी है, ठीक है. आई डोंट नो व्हाई इट्स इंडेक्स इज 6. इसका 0 1 2 3 4 5 एंड 6. अच्छा 6 इसका इंडेक्स है. एंड क्या हो गया इसके बेसिकली, चलो लेट्स नॉट, या लेट्स नॉट मेक इट messy kind of stuff.
लेट्स राइट इट लाइक दिस, ठीक है। 2 और 6 का डिफरेंस आपका 4 है, दैट्स व्हाई इट इज। तो हम बेसिकली मैं यहाँ पे कंपैरिजन के लिए वैल्यू दिखा रहा हूँ, बट स्टोर हम इंडेक्स कर रहे हैं, दैट्स अबाउट इट। एंड 76 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 76 इसमें पुश हो जाएगा, पर ये 73 को पॉप करा देगा, बिकॉज नाउ देयर इज नो नीड ऑफ 73, बिकॉज जो भी एलिमेंट आएंगे जिससे बड़ा 73 है उससे बड़ा 76 भी होगा। लाइक फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स व्हिच आर लेस देन 73 विल हैव आर आल्सो लेस देन 76, तो बेसिकली इसलिए हम पॉप करा देते हैं एंड इट्स मोर नियर टू देम। एंड देन इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी 0 ही आएगा, बिकॉज देयर इज नथिंग इन द स्टैक, क्योंकि इसने पॉप करा दिया। एंड 70, अब इसके बाद ये पुश कर देगा अपने आप को 76 को। एंड जब हम 72 पे आएंगे तो हम देखेंगे स्टैक के अंदर 76 पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। एंड ये क्या करेगा, इसको अपने आप को पुश कर देगा, 72 76 कर देगा। देन फिर हम जाएंगे अपने 69 पे, तो ये देखिएगा वैल्यू कि भाई ये भी जैसे कुछ पॉप नहीं कराएगा, 1 लिख देगा, क्योंकि 72 इज बेसिकली, ये देखो यहाँ पे क्या करा, इसने देखा कि स्टैक की साइज ठीक है, पर क्या इसको कुछ पॉप कराना चाहिए कि a ऑफ i जो कि 69 है इज ग्रेटर देन 72, नो, सो इट विल नॉट पॉप, इट विल यहाँ पे आ जाएगा v ऑफ i इक्वल टू स्टैक एम्प्टी है, नहीं। एच डॉट टॉप पे क्या रखा हुआ है, एच डॉट टॉप पे तुम्हारा इंडेक्स रखा हुआ है, 5 इंडेक्स रखा हुआ है, एंड इसका इंडेक्स क्या है, तुम्हारा इंडेक्स 4 है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5, 5 माइनस 4 विच इज 1, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, एंड आपके स्टैक डॉट पुश कर देंगे हम इसको 69 को, ठीक है, 69 मतलब बेसिकली पुश करेंगे उसके इंडेक्स को, पर यहाँ पे कंपैरिजन के लिए वैल्यू दिखा रहा हूँ मैं, 72 एंड 76, ठीक है। एंड देन वील कम टू 71, तो 71 देखिएगा कि ओके 69 इज छोटा, लाइक वॉट एवर इज प्रेजेंट इन द टॉप, तो ये पॉप कराएगा, और फिर इसकी वैल्यू लाइक 2 हो जाएगी, इसने एक को पॉप कराया है, एंड ये 71 72 एंड 676, राइट। एंड इसके बाद 75 जब आएगा वो सबको पॉप करा देगा, और 76 को छोड़ देगा, बस 76 बच जाएगा और आंसर 4 ले लेगा, बिकॉज ये जब पॉप कराएगा तो डिफरेंस देखेगा, स्टैक टॉप पे पड़ा हुआ होगा तो उस टाइम पे लाइक 6 पड़ा होगा स्टैक टॉप पे, और इसकी वैल्यू तो 5 है, तो ये डिफरेंस ऐसे ले लेगा, और फिर लास्ट में कर देगा ये 75 76। एंड देन जब बाकी सब तो नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि 74 भी इसके ऊपर आराम से चिपक जाएगा, 74 75 76 और 73 भी इसके ऊपर आराम से चिपक जाएगा, 73 74 70, इसके लिए भी आंसर 1 है, और इसके लिए भी आंसर 1 है, राइट। इसके लिए भी आंसर 1 है, 73 74 75 76। तो इसको हम मोनोटोनिक स्टैक क्यों बोलते हैं, बिकॉज एट द एंड यू विल सी द स्टैक इज ओनली इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन भी होते हैं कुछ, सो दैट्स अबाउट इट, या। Next, move to the GFG problem of the day, the game of LCM. It's quite a simple problem. It's quite a very simple problem, because you have been given an integer n, and you have to find the maximum LCM of the four numbers which are less than or equal to n. तो आपको n से छोटे 4 नंबर लेने हैं जिनका LCM मैक्स होना चाहिए, ठीक है। पर हम सारे चेक नहीं कर सकते, क्योंकि n से छोटे 4 नंबर के लिए तुम्हें n पे 4 बार लूप लगाना पड़ेगा, फॉर n की पावर 4, बट वी वांट टू डू इन log n। तो इसके लिए एक बेसिक फंडा है कि आपका जितना बड़ा नंबर लोगे, एक और फंडा है कि n n नहीं, मान लो x और इंटू x माइनस 1, ठीक है। अगर कोई भी दो इंटीजर है, फॉर एग्जांपल फॉर ऑल एक्स इंटीजर, एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक है। अ, अगर एक्स इंटीजर है हमारा, तो इन दोनों का जो ये होगा, एक्स और एक्स माइनस 1 का जो एलसीएम होगा वो लाइक इसका जीसीडी 1 होगा, ठीक है। इसका जीसीडी 1 होगा, लाइक एक्सेप्ट 1 और 2 का भी जीसीडी 1 होता है, 2 और 3 का भी देख लो, 3 4 का भी देख लो, 4 5 9 10 100 और 101, किसी का भी दो नंबर का एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जीसीडी 1 होगा, और इनका एलसीएम इनका खुद का प्रोडक्ट होगा, तो विच इज मैक्सिमम ना। तो हम चाहेंगे कि हमें एलसीएम मैक्स मिले, तो हम एक्स और एक्स माइनस 1 को लेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकती है यहाँ पे एन, तो क्या हम एन और एन माइनस 1 को लेंगे यार, ये देखना जरूरी है, क्योंकि जब तुमने एन को ले लिया ना, तो तुम ये देखो x माइनस 1 हो गया, और अब मान लो x माइनस 2 आता है, तो अब ये अगर x इवन है मेरा, तो x और x माइनस 2 में एक एलसीएम आएगा 2 का पक्का, क्योंकि दोनों इवन है, 2 से दोनों डिविजिबल हैं। तो हम कई बार चूज करेंगे कि इसको ना लें, तो आपका बेसिकली मैं बता देता हूँ होने वाला क्या है रिटर्न। हम दो के लिए आंसर निकालेंगे, मैक्स ऑफ एक तो सॉल्यूशन ऑफ n के लिए निकालेंगे, एक हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ n माइनस 1। किसी केस में हमें आंसर मिल रहा होगा मैक्स n से, किसी केस में आंसर मिल रहा होगा n माइनस 1 से। करना क्या, करना यही है, इस फंडे पे चल रहा है कि x और x माइनस 1 हम लेंगे तो हमें मैक्स मिलेगा, तो देखते हो कैसे करना है। लॉन्ग लॉन्ग सॉल्यूशन लॉन्ग लॉन्ग n, हम क्या करेंगे, सॉरी यार, लॉन्ग लॉन्ग लिखना ही इसका पंगा है, कॉपी पेस्ट ही करो लास्ट में,
ए इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन हम कर लेंगे, ये तो आना ही आना है। अब हम चलना स्टार्ट करेंगे, वाइल पीछे पीछे चलना स्टार्ट करेंगे, वाइल योर n माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट ग्रेटर देन जीरो बट ग्रेटर देन टू एंड योर जो c है एक c वेरिएबल बना लेंगे, इट्स ग्रेटर देन सॉरी इट्स लेस देन टू। और तब तक हम क्या करेंगे, हम करेंगे चेक करेंगे इफ तुम्हारा जीसीडी ऑफ n माइनस टू कॉमा जो तुम अभी नंबर देख रहे हो a इज इक्वल टू वन है, तो हम क्या करेंगे a में मल्टीप्लाई कर देंगे अपने n माइनस टू को, और क्या करेंगे हम नीचे लिख लेता हूँ, ज्यादा मेसी हो जाएगा फिर, राइट। a को अपना कर देंगे, एक तो मल्टीप्लाई हो गया, अगर मल्टीप्लाई और फिर हम c को प्लस प्लस कर देंगे, और हम n को तो माइनस माइनस करना ही है, ठीक है, n को माइनस माइनस हम नीचे कर देते हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे अपने a को। दैट्स अबाउट इट, सी बना लेंगे सी इक्वल टू जीरो। तो दो नंबर हमने ले लिए, अब सी मतलब हमें दो नंबर और चाहिए, हम पीछे चलना स्टार्ट करेंगे n माइनस टू से, हम तब तक पीछे चलते रहेंगे जब तक मतलब जीसीडी अगर वन मिल गया तो इसको ले लेंगे और सी प्लस प्लस कर देंगे, और फिर एक और बार जब हमें जीसीडी वन मिलेगा, मतलब कि जीसीडी वन मतलब देखो पहले मैंने ए इंटू बी ले लिया, ठीक है, फिर अब मेरे को तीसरा नंबर चाहिए सी, ठीक है, मान लो मेरे को एबीसीडी चार नंबर चाहिए थे, तो एबीसीडी अब मैं ऐसे नंबर लूंगा जो आपस में जीसीडी मतलब वन ही होना चाहिए ना, क्यों, वरना बहुत बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अगर इन दोनों का जीसीडी टू भी हो गया ना, तो सीधा डिवाइड बाय टू का फर्क आ जाएगा, मतलब अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल 20 लिया, ठीक है, 20 तुम्हारे पास नंबर था, तुमने 20 ले लिया, तुमने 19 ले लिया और तुमने 18 ले लिया, तो 18 और 20 की वजह से पता है क्या होगा, जीसीडी तुम्हारा जैसे 2 इंटू टेन था, ये 2 इंटू नाइन है, तो इन दोनों में से एक ही 2 आ रहा होगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू टेन, अगर इसको ऐसे ही रहने दो, तो मतलब अगर तुमने 18 ले लिया तो 18 का फायदा 18 नहीं है, 18 का फायदा घट के सीधा 9 हो गया, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाएगा, तो बल्कि हम क्या करना चाहेंगे इसमें, हम 19 लेना चाहेंगे, 18 लेना चाहेंगे, 17 लेना चाहेंगे, 16 लेना चाहेंगे, बिकॉज 19 और 17 तो ऑलरेडी तुम्हारे प्राइम है, 18 और 16 में ऐसा कुछ है नहीं खास, मतलब टू टू का फर्क है, तो 15 ले लो, 15 3 और 5 होता है, ये भी 3 से डिविजिबल है, 14 ले लो, फिर 2 का फर्क आ जाएगा, ये भी नहीं लेंगे, 13 ले लेंगे, ठीक है, तो दैट वुड बी द मैक्सिमम आई थिंक इन दिस केस, तीन इसमें वो है, या बिकॉज इससे तो बेहतर ही है ना, 9 8, और अगर मैं 18 के बाद 17 ले रहा होता तो 17 तो चलो सही है, पर ये जो 9 हो गया ना बीच का, इससे बहुत पंगा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा ना, राइट, क्योंकि इसमें से दो नंबर तो सेम ही है। अब तुम ही देख लो 20 इंटू नाइन और 18 इंटू 13 में से कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है ना, तो ऐसे ही कुछ है लॉजिक, बट मेन लॉजिक ये किस पे लग रहा था, 18 वाले पे लग रहा था कि 18 इंटू 17 तुमने ले लिया, अब तुम क्या बोलोगे, 16 तुम नहीं लोगे, ठीक है, 15 तुम नहीं लोगे, क्या लोगे फिर तुम, अगर 18 इंटू 17 ले लिया ना, 15 ले सकते, ना 16 ले सकते, ना 14 ले सकते, 13 ले सकते हो, 13 के बाद तुम 11 ले सकते हो, ठीक है, अब सारे तुमने एक 18 लेने के चक्कर में बाकी सारे प्राइम से काम चलाना पड़ा, पर अगर तुम 17 लेते तो तुम 16 ले सकते थे, तुम 15 भी ले सकते थे, नहीं तुम 13 ले सकते थे, आई थिंक 13 ले सकते थे, और तुम 15 भी ले सकते थे, बिकॉज इसमें सारा 4 इंटू फोर है, 15 में 3 इंटू फाइव है, 15 भी ले सकते हो, सोचो बस, इस 18 के चक्कर में ना तुम 3 ले सकते ना तुम 2 ले सकते, तो 3 का मल्टीपल ये 15 चला गया, 2 के मल्टीपल 16 चला गया, अब इसमें देखो ये सबसे मैक्स आएगा, ठीक है, ऐसा ही फंडा है, दैट्स अबाउट इट, रन करते हैं बड़े नंबर के लिए, 400 के लिए रन कर देते हैं एक बार, क्योंकि उससे तुम्हारी लॉन्ग लॉन्ग वाली चीजें सारी चेक हो जाएंगी, लेट्स सबमिट इट, दैट्स अबाउट इट, काफी सिंपल क्वेश्चन था, ओके, सो दैट्स अबाउट इट, ओके गाइस बाय।